बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। So class, this is our lecture number 2 on chapter number 12, electrostatics. In this lecture I am going to discuss the problems on the electric intensity due to a single sheet, or the electric intensity form in the term of source charge. Class, so these are the few numericals which I am going to solve in this chapter. We have done with the Coulomb's numericals in the last lecture, and now I am discussing electric intensity and few more numericals in this chapters. These are the remaining numericals of this chapters. These all numericals I am going to discuss or I am going to solve in this chapters. Almost 25 or maybe greater than 25, because few numericals has part A, B, C in that sense. So these are the problems which I am going to solve or discuss in this lecture. It almost 6 numerical over there. The problem number 5 is the most difficult numerical. I will solve this numerical at the end of this lecture. First of all, I am solving the problem 6, 7, 8, 9a and 9b. But the problem number 5, it's very difficult and it has a very diagram. I will solve this numerical at the end, so that you will be able at that time that how to solve this numerical. Okay, first of all I am discussing the formula of electric intensity. Electric intensity in the term of test charge form. So E is equal to electrostatic force per unit test charge Q naught, where source charge on body A is Q, test charge on body B is Q naught. Distance between the centers of both charged bodies is R or R12, and K is the Coulomb constants. Now I will explain all these variables in the form of diagram. So suppose this is our Q1 और दी सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज. सोर्स चार्ज उसे कहेंगे जिसकी फोर्स हम दूसरे किसी चार्ज पर अप्लाई कर रहे होंगे या मालूम कर रहे होंगे. सो Q1 की फोर्स हम यहाँ Q2 पर यानी टेस्ट चार्ज Q पे फाइंड करेंगे, Q0 पर. सो दिस इज़ द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज. ये फील्ड है या उसका मैदान है, यहाँ तक इसकी फील्ड पाई जा रही है और ये सर्कल लेफ़्ट साइड पे भी आ रहा होगा, बट आई एम डिस्कसिंग इट्स डायग्राम ऑन द राइट हैंड साइड. सो दिस इज़ द रेंज ऑफ दिस और फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज इन अ होल सर्कल फॉर्म. So suppose we have a test charge, small amount of charge plus Q naught, Q2 is equal to Q naught, and the distance between them is R12 or R. So in order to find the direction of force, we draw variable the position vector R, and in the direction of this is R cap. So this is the force of repulsion. So the electric intensity from positive charge is always outward and the electric intensity from the negative charge is inward. You know very well. प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटवर्ड निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है, और नेगेटिव चार्ज में इन्वर्ट होती है, अंदर एंटर हो रही होती है. तो प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर जो है वो आउटवर्ड होता है हर तरफ से, और नेगेटिव में वो इनवर्ड होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट चार्ज. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर आया है प्लस चार्ज से जो बाहर की तरफ निकल रहा है. Okay, so the F12
will be acting like this. तो जो F12 फोर्स लगेगी वो इस तरह से लगेगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन में और यूनिट वेक्टर आर कैप या आर की डायरेक्शन में. ओके, सो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट. नाउ द सेकेंड फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला, इफ वी प्लेस द वैल्यू ऑफ कूलम्स लॉ ओवर देयर, सो व्हाट कूलम्स लॉ विल बिकम ओवर देयर, F is equal to K Q naught upon R square. If we place the value of Coulomb force in this equation of electric intensity, अगर हम इस इक्वेशन में कूलम्स लॉ जो यहाँ पे बन रहा है K Q naught upon R square रख दें, तो इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की फॉर्म आएगी वो इस तरह से आ जाएगी K Q अपॉन R स्क्वायर, बिकॉज Q नॉट से Q नॉट दोनों डिवाइड हो जाएंगे. सो दिस फार्मूला वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ सोर्स चार्ज. ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, बाकी सारे न्यूमेरिकल में हमारे पास ऊपर टेस्ट चार्ज वाला फार्मूला ही यूज़ होता है. ओके, सो this source charge formula will be used in the numerical number 5, which I am going to solve in the end of this lecture. Okay, so we have two formulae of the electric intensity over there. Okay, now E due to a single charge sheet. First of all, what I am explaining is diagram that the electric intensity due to a single charge sheet. Consider this is our metal sheet or insulated sheet which contain positive charge, and the amount of charge is called Q. So this sheet will be act as a source charge over there, and we have a test charge. This is a very small amount of plus test charge over there. So first we draw a position vector R, and the direction of the source charge electric intensity is outward. तो ये वेक्टर E बता रहा है कि प्लस की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटवर्ड होती है हमेशा और नेगेटिव की इनवर्ड होती है. तो प्लस चार्ज है सोर्स चार्ज के ऊपर और टेस्ट चार्ज ही प्लस है, तो ये इसको रिपेल करेगा. सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी ऑन द राइट हैंड साइड ओवर देयर. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अवे फ्रॉम द शीट, and the equation of the electric intensity is sigma divided by 2 epsilon naught. तो हमारे पास जो गॉस लॉ की हेल्प से फॉर्म आती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो ये होती है. सो नाउ द फॉर्मूला फॉर दिस E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल शीट चार्ज शीट हमारे पास सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, और अपोजिट चार्ज शीट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है. और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला F अपॉन क्यू नॉट भी होता है, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, फंडामेंटल फार्मूला. और फोर्स को हम क्यू नॉट E के बराबर भी लिख सकते हैं, वेयर सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट्स यूनिट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, इट्स फार्मूला इज क्यू अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया, एंड E नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, वैल्यू इट्स 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. So this is our first numerical related to the electric intensity due to a single charge sheet, E due to a single charge sheet. A thin infinite sheet uniformly distributed positive charge attracts a light sphere having charge minus 5 exponent minus 6 coulomb with a force of 1.695 Newton. Calculate surface charge density of a sheet. So it's a numerical of surface charge density, and you are provided the positive charge over there and a light sphere minus 5 exponent minus 6 coulomb is the test charge over there with force of 1.695 Newton. Its answer is 6.0003 exponent minus 6 coulomb per meter square. First of all, I am drawing this diagram and discussing its diagram. Here we have a sheet which contains positive charge Q. Q is not given over there, okay? And we have a test charge Q naught. This is given over there, minus 5 exponent minus 6 coulomb. It's a position vector, electric intensity right hand side, because the electric intensity of source charge is to the right hand side. But what will happen to this test charge? It will attract or it will repel. So the force by which sheet will act on it, so this force is like this.
this sheet will attract this test charge towards the sheet. So the direction of force is towards the sheet over there. ओके नाउ तो यहाँ पर बेटा देख रहे हैं आप एक शीट है जिसके ऊपर चार्ज Q है. Q की अमाउंट नहीं गिवन आपको. उससे दूर एक स्फीयर है, लाइट स्फीयर, जिसके ऊपर टेस्ट चार्ज आपके पास आया हुआ है -5 एक्सपोनेंट -6 कूलम, और इस पर जिस फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स गिवन है 1.695 न्यूटन. तो इस कंडीशन पे आपने बताना है कि जो सरफेस चार्ज है यानी शीट के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी होगी. ओके, सो फॉर F इज इक्वल टू 1.695 न्यूटन, Q नॉट इज इक्वल टू -5 एक्सपोनेंट -6 कूलम. Q is equal to positive, but we don't know the value of this. Epsilon naught 8.85 exponent -12 coulomb square per Newton meter square. It's a constant. And sigma, just surface charge density, you have to find it over there. So this is the complete data of this numerical. Okay, now in the solution for sigma from the equation of E due to a single charge sheet, you know very well E is equal to sigma divided by 2 epsilon naught. Okay, so we equate this equation for sigma. Sigma will become equal to 2 epsilon naught E, but we know that E is also equal to F upon test charge. हमें भी पता है कि E जो है वो फोर्स अपॉन Q नॉट के बराबर है. तो सिग्मा, तो E की जगह जो रेड से लिखा हुआ है हम F अपॉन Q नॉट लिख देंगे. फिर इनकी वैल्यूज़ प्लेस करने पे हमारे पास सिग्मा कितना आ जाएगा 6.0003 एक्सपोनेंट -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर. ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. सिंपल न्यूमेरिकल. ओके, गॉट इट. So we have same numerical as we did in the last slide. अब हमारे पास तकरीबन 3 से 4 न्यूमेरिकल सेम पैटर्न पे होंगे, तो मैं थोड़ा सा उनको फास्ट एक्सप्लेन करूँगा ताकि फिर हम प्रॉब्लम नंबर 5 पे आ जाएँ जो हमारा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है. सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन अ वर्टिकल मेटल प्लेट इज 25 एक्सपोनेंट -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर. तो ये भी उसी का ही है. फाइंड द फोर्स एक्सपेंड बाय अ चार्ज प्लेस इन फ्रंट क्लोज टू अ शीट. तो ये भी हमारे पास वही शीट और टेस्ट चार्ज का न्यूमेरिकल है. तो अगेन इसकी डायग्राम, हमारे पास सोर्स चार्ज है Q नॉट एक शीट से दूर, ये एक टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैंने प्लस बनाया है. टेस्ट चार्ज 2 एक्सपोनेंट -10 टेस्ट चार्ज गिवन है आपको, और सोर्स चार्ज गिवन नहीं है. वेक्टर आ गया, वेक्टर R, इंटेंसिटी आउटवर्ड होगी सोर्स चार्ज की. सो सोर्स चार्ज शीट विल रिपेल दिस टेस्ट चार्ज, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अवे फ्रॉम द शीट. ओके, नाउ in the data, F is equal to question mark, Q naught is equal to 2 exponent -10 coulomb. Source charge is positive but its value is not given. E naught is a constant, epsilon naught, and sigma value is also given 25 exponent -6 coulomb per meter square. Okay, now in the solution. Okay, now in the solution, first of all we have to find the force over there. So from the equation of E due to single sheet, we know that E is equal to sigma divided by 2 epsilon naught, and we also know that E is equal to F upon Q naught. So if we equate this both equation, अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो कंपेयरिंग अब बोथ इक्वेशन we will get sigma upon 2 epsilon naught is equal to F upon Q naught. Now equate this equation or the comparison of equation for F. अब इस इक्वेशन को अगर F के लिए इक्वेट करें तो ये क्या बन जाएगी, F बराबर हो जाएगा सिग्मा Q नॉट डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. आफ्टर प्लेसिंग देयर वैल्यू, force will be equal to 2.828 exponent -4 Newton, and its direction of this force is away from the sheet, away from the source charge. Okay. This is also the same numerical as we in our last slide. We have to find again the force
and we have a test chart, we have a vertical chart sheet plate, and we have to find out the charge density. So again we have a chart sheet having source charge Q0, which is not given over there, and a test charge. Its value is positive plus 2 exponent minus 8 coulomb. It's a position or distance of that charge. The electric intensity of the sheet will be outward because इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्लस चार्ज से बाहर निकलती है, वेक्टर की जिसकी डायरेक्शन होती है प्लस से आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनवर्ड होती है. सो both have the positive charge, so the source charge will repel this charge, so the direction of force will be away from the sheet, as I told you in the previous question. This question is similar, हमें यहाँ पे भी force ही find करनी है, and our next question is also similar to this question. So force is equal to question mark Q0 is equal to 2 exponent minus 8 coulomb over there. Source charge is positive but the amount is not given. Epsilon is constant given over there, and the surface charge density is 20 exponent minus 4 coulomb per meter square. At this condition you have to find out the force. Okay, I hope you will got diagram. Okay, now in the solution for F, using equation of electric intensity due to single charge sheet, E is equal to sigma divided by 2 epsilon naught, and compare this equation with E is equal to F upon Q naught, we will get our comparison sigma upon 2 epsilon naught Q upon F upon Q naught. By equating this equation for F and placing the values of all variable, we will get our answer 2.26 Newton, and its direction is away from the sheet. Okay, this force will act away from the sheet. This question is also similar to the last numerical. Again you have to find out the force. You are provided with a charge sheet and a test charge placed at a distance from the source charge, and its charge density also given over there. So you have again a charge sheet having source charge Q, which is not given, and test charge is 6 exponent minus 8 coulomb plus. So this source charge will repel this test charge by some force, so we have to find that force over there. So the intensity of source charge, तो Q की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो आउटवर्ड होगी, मैंने आउटवर्ड का वेक्टर बना दिया यहाँ पर, and the direction of force also outward from the sheet, away from the sheet. Okay, so now I am writing his data. F is equal to question mark Q naught is 6 exponent minus 8 coulomb. Q positive is not given over there, but source charge is positive, you know this. E naught is constant given over there, epsilon naught, and sigma is equal to 8.85 exponent minus 7 coulomb per meter square. Okay, at this condition again you have to find out the force. Okay, okay, now in the solution for F, from the equation of E due to single charge sheet, you know very well E is equal to sigma by 2 epsilon naught. We also know that that E is also equal to Q F upon Q naught. By equating both this equation, we will get sigma upon 2 epsilon naught F upon Q naught. Now equate this equation for F and placing the values of all variable, we will get our answer. F is equal to 0.003 Newton, and this force will be acted outward or away from the sheet. Okay, so this is the end of the electric intensity to single charge sheet numericals. Okay, now in this numerical you are again provided with a charged particle which is placed close to a positive charge sheet having surface charge density 2 exponent minus 6 coulomb per meter square. So this numerical is also similar to the last numerical. I am discussing its diagram now. 2 Newton is the answer of this numerical. So here you have again a positively charged sheet and a test having charge Q, source charge. This is not given over there,
and a charged particle 17.7 microcoulomb. So this test charge is positive. Q naught is 17.7 microcoulomb. Micro means exponent minus 6. Place close to a positive charge sheet. Okay, now it's a position vector on this charge sheet on the test charge. The direction of electric intensity of a source charge Q. Electric intensity is outward, and the direction of force of source charge on Q naught is outward. So जो source charge है वो Q naught पर कैसे force लगाएगा, repel करेगा outward. So the direction of force will be away from the sheet. Okay, now I am writing its data. F is equal to question mark. Force, we have to find out its force with the direction. Q naught is 17.7. Micro means exponent minus 6. So I write here exponent minus 6 coulomb, because you have to convert all the conversions in your SI unit. Don't write 17.7 micro. You have to convert micro into exponent minus 6. तो माइक्रो की जगह हम एक्सपोनेंट माइनस 6 लिख देंगे, 10⁻⁻⁶ कूलम आ जाएगा. Q प्लस आपको पॉजिटिव सोर्स चार्ज नॉट गिवन ओवर द एयर. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर इज गिवन, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू. And the value of surface charge density is 2 exponent minus 6 coulomb per meter square over there. At this condition you have to find out the force and the direction of that force acting on the test charge particle. Okay. Now in the solution for force using the equation of electric intensity due to single charge sheet, as I discussed in the last 3 to 4 numericals, E is equal to sigma divided by 2 epsilon naught, and E is also equals to F upon Q naught. On comparing these two equations, or by comparing these two equations, we will get this relation. Now equate this equation for F. So F is equal to sigma Q naught to epsilon naught. After placing the values of all variables, we will get our answer. Force is equal to 2 Newton, and this is direction of this force is away from the sheet. Okay, so this is the end of this electric intensity to the single charge sheet numericals. Now I am coming toward the most difficult numerical number 5. So electric intensity in term of source charge, this is the heading of this numerical. Problem number 5. Two charges plus 2 exponent minus 7 coulomb and minus 5 exponent minus 7 coulomb are placed at distance of 50 centimeter from each other. Find the point on the line joining the charges at which electric field is 0. तो यहाँ पे कहा जा रहा है दो चार्जेस हैं आपके पास, प्लस 2 एक्सपोनेंट माइनस 7 एंड माइनस 5 एक्सपोनेंट माइनस 7 कूलम. माइनस 5 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, उसका अमाउंट ज़्यादा है, और प्लस चार्ज है वो छोटा होगा, उसका मैग्नीट्यूड 2 है. दोनों चार्जेस 50 सेंटीमीटर के फासले पर हैं, और आपने बताना है कि इनके लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पर वो पॉइंट जहाँ पर दोनों की इंटेंसिटी 0 हो रही हो या कैंसिल आउट हो रही हो, यानी वहाँ पर E1 और E2 एक दूसरे के बराबर आ रहे हों, या E1 प्लस E2 का आंसर क्या आ रहा हो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 आ रही हो, दोनों की एक साथ 0 आ रही हो. ये नहीं कि एक पहले 0 हो गया एक बाद में 0 हो रहा है, ऐसा नहीं, दोनों का एक साथ वहाँ पर इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए. This is the answer of this numerical. First of all I am discussing this diagram. It's a very lengthy diagram. कोशिश करिएगा इसे समझने की. Try to understand it. Okay, I will try my best. So now here we have a diagram. So consider this is our positive charge plus 2 exponent minus 6 coulomb, and this is our negative charge minus 5 exponent minus 6 coulomb. दो चार्जेस हैं हमारे पास, माइनस 5 की अमाउंट ज़्यादा है, थोड़ा सा बड़ा बना है चार्ज, प्लस 2 है, 2 जो है वो छोटी वैल्यू है तो उसकी अमाउंट थोड़ी सी छोटी बनाई है. तो ये दो चार्जेस बेटा हमारे पास यहाँ पर गिवन है, और इनके दरमियान एयर मौजूद है. ओके, और ये लाइन जो है लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स है, ये लाइन डिस्टेंस तक जा रही है. एक्सिस भी कह सकते हैं इसको हम.
So this diagram has three sides. Left side we call first way, and the middle side we call the second part, and the third side is the right hand side, we call it the third side. So these three sides are there. अब इन थ्री साइड्स में से या तो लेफ्ट पे या मिडिल पे या राइट साइड में वो कौन सी साइड है जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 और E2 का एडिशन रिजल्टेंट 0 आ रहा होगा या E1 E2 के बराबर हो रही है। हमें अब वो साइड जो है या वो पॉइंट तलाश करना है कि वो पॉइंट कहाँ पे हो सकता है। तो पहले एक जनरल सी बात करता हूँ कि दोनों में चार्जेस जो हैं वो अपोजिट हैं, तो इनके दरमियान में जो इंटेंसिटी होगी प्लस से बाहर निकलेगी और माइनस में एंटर हो जाएगी, तो इनके दरमियान में जो इंटेंसिटी मिडिल रीजन जो है यहाँ पर इंटेंसिटी 0 नहीं हो सकती दोनों की। अब बच गई दो साइडें, या तो लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड, या तो साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3। साइड 2 की बात मैंने आपको बता दी है, अभी डायग्राम में और डिटेल बताऊंगा उसको मैं। तो साइड 2 पे ये पॉइंट नहीं मिल सकता। इसकी आसान सी हिंट ये होती है कि ये पॉइंट आपको वहाँ मिलता है जहाँ पे स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो। तो इसके ज़्यादातर चांसेस जो है या 100% चांसेस जो है वो कहाँ पर होंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज वी हैव +2 और -5। So +2 is the small amount of charge, so the point where E1 and E2 both will be equal is on the left hand side or in the first side over there. तो ये पॉइंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा या फिर साइड 1 पे आएगा। ओके, नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन मोर डिटेल। This is the distance between the both charges. They are separated by 50 centimeter. Okay, so we have to find this point where E1 plus E2 is equal to 0 or E1 plus minus E2 is equal to 0, or we can write that E1 is equal to E2, जहाँ पे इनका अलजेब्रिकल सम रिजल्टेंट जो है वो 0 आ जाए या फिर E1 E2 के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। हमें ये पॉइंट यहाँ पर फाइंड करना है, सर्च करना है। ओके, so this is the field of a source charge Q2। Q2 की फील्ड, क्योंकि Q2 का अमाउंट बड़ा है, -5 है, 5 उसकी वैल्यू है, तो उसकी जो सोर्स चार्ज उसका जो मैदान होगा, उसकी जो फील्ड होगी वो ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू +2। तो ये हमारे पास इसका फील्ड चल रही है जो कि राइट साइड पे भी बहुत दूर तक फैली हुई है, जो कि डायग्राम में नज़र नहीं आ सकती, लेकिन लेफ़्ट साइड पर Q1 से भी आगे तक ये जा रही है। सो दिस इज़ द फील्ड ऑफ चार्ज Q2 एंड दिस इज़ द फील्ड ऑफ दिस चार्ज Q1। तो Q1 की जो फील्ड है या रेंज है वो यहाँ तक मौजूद है। इस रीजन के अंदर इसकी फोर्स मौजूद रहेगी, Q1 की इंटेंसिटी मौजूद होगी। इससे बाहर की रेंज पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बज़ाहिर जो लग रहा है कि वो पॉइंट हमें कहाँ पर मिलेगा बेटा, इस पॉइंट पर जहाँ ये एरो इंडिकेट कर रहा है, दिस पॉइंट P विल बी द पॉइंट एट विच E1 इज़ इक्वल टू E2 और रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 ओवर देयर। अब ये पॉइंट यहाँ पर ही क्यों मिला, P पर ही क्यों मिला, ये थर्ड राइट साइड पे क्यों नहीं मिला, मिडिल साइड पर क्यों नहीं मिला, यानी कि सेकंड साइड पर क्यों नहीं मिला और थर्ड साइड पे क्यों नहीं मिला, इसको हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने की। ओके, सो दिस इज़ अवर पॉइंट P एट विच E1 इज़ इक्वल टू E2। सो ये हमारे पास एक पॉइंट P बन चुका है, और ये पॉइंट P कितने फासले पर है, हमें ये फासला बताना है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका डिस्टेंस कितना है Q1 से X, इसका डिस्टेंस Q1 से कितना है, X है। ओके, बिकॉज एट दिस पॉइंट E1 एंड E2 बोथ विल बी कैंसिल ईच अदर, क्योंकि आप देख रहे हैं इस पॉइंट के बाद दोनों की इंटेंसिटी जो है ख़त्म हो रही है, 0 हो रही है। तो इस पॉइंट पर दोनों की इंटेंसिटी क्या हो रही होगी, बैलेंस हो रही होगी। अब मैं इनके ज़रा वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए। ये जो Q2 चार्ज है उसका वेक्टर मैं रेड से ड्रॉ करूँगा। तो इसका रेड से जो वेक्टर है, Q2 की इंटेंसिटी आपको पता है नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी इनवर्ट होती है, और Q1 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी आउटवर्ड होती है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर इन दोनों की इंटेंसिटी E1 E2 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल, very core important part of this numerical. Okay, now I am discussing this point R because ये भी तो एक पॉइंट है मिडिल रीजन में जहाँ पर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ Q1 0 हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्लस Q1 है उसकी इंटेंसिटी कहाँ है, राइट साइड पर जा रही है। इसकी इंटेंसिटी का वेक्टर कैसे निकलेगा, राइट साइड पर, जस्ट लाइक अ फोर्स। इंटेंसिटी को यहाँ फोर्स से रिजेंबल करें कि यहाँ पे एक फोर्स लग रही है राइट साइड पर, जो ये ब्लू वेक्टर से नज़र आ रहा है आपको, ब्लू एरो से नज़र आ रहा है। और अगर मैं अब इस Q2 की इंटेंसिटी ड्रॉ करूँ तो Q2 की इंटेंसिटी कैसे आ रही है, ये भी क्योंकि Q2 एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव की इंटेंसिटी इन्वर्ट होती है हमेशा, तो ये भी राइट साइड पर आ रही है। तो ब्लू की इंटेंसिटी E1 हुई और रेड वाली इंटेंसिटी E2 हुई, तो यहाँ पे E1 और E2 आपस में ऐड हो जाएंगे, कैंसिल नहीं कर रहे एक दूसरे को। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं, इनका इफेक्ट जो है वो आपस में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ इनकी इंटेंसिटी E1 प्लस E2 ज़ीरो के बराबर नहीं आएगी। तो ये पॉइंट मिडिल रीजन में तो हो ही नहीं सकता। मिडिल रीजन में कब होता है, अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के होते, या तो बोथ प्लस होते या बोथ माइनस होते, तब इनकी वो पॉइंट जो हमें तलाश करना था कि जहाँ पे E1 E2 बराबर हो जाएं या कैंसिल हो जाएं, तो वो सेंटर में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अपोजिट चार्जेस हैं तो ये पॉइंट मिडिल में नहीं हो सकता। तो आपको मिडिल रीजन भी समझ में आ गया होगा, सेकंड रीजन में हमने ये पॉइंट क्यों नहीं लिया। अब आते हैं थर्ड रीजन पर, यानी कि राइट साइड पर। राइट साइड पर आप देखें तो राइट साइड पर आपके पास Q1 का जो मैदान है या Q1 की जो फील्ड है वो तो इस पॉइंट R पर ही ज़ीरो हो चुकी है। पॉइंट R के बाद वो आगे मिलेगी ही नहीं। तो अगर मैं बिल्कुल उससे और आगे चला जाऊंगा, यानी कि हम अगर राइट साइड पर आ जाएं, Q2 से राइट साइड पर, तो इस जगह पर E1 जो है वो पहले ही ज़ीरो हो चुका है। यहाँ पर E1 क्या हो चुका है, पहले ही ज़ीरो हो चुका है, तो उसका तो वेक्टर यहाँ ड्रॉ ही नहीं हो सकता। बट हेयर एग्जिस्ट ओनली E2 का जब हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो आप देख रहे हैं किस तरफ आ रहा है, रेड वेक्टर, क्योंकि इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज की कहाँ होती है, इनवर्ड होती है, टुवर्ड्स द चार्ज। तो यहाँ पर जो इसका वेक्टर आएगा वो लेफ़्ट की तरफ ड्रॉ हो जाएगा। थोड़ा सा इस एरो से देख सकते हैं आप, जो रेड वेक्टर ड्रॉ हुआ है थर्ड रीजन में। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि E1 तो ज़ीरो हो गई है, लेकिन E2 ज़ीरो नहीं हुआ है, क्योंकि रेड चार्ज की फील्ड बहुत आगे तक फैली हुई है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे भी नहीं मिल पा रहा। हमें वो पॉइंट सर्च करना है जहाँ पे दोनों की फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करे। तो यहाँ E1 तो पहले ही ज़ीरो हो चुका है, सिर्फ E2 आपको शायद आगे जाके ज़ीरो हो जाए वो, तो E2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है यहाँ पर। सो वो पॉइंट यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो जो सिर्फ एक पॉइंट बच गया जहाँ पर E1 E2 ज़ीरो हो सकती है, वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट P है, एट ऑलवेज टुवर्ड्स दी स्मॉल अमाउंट ऑफ द चार्ज। अब इसकी मैं हिंट बता रहा हूँ इस सवाल की कि इसको आपने याद कैसे रखना होगा, किस तरह का अगर न्यूमेरिकल आता है जिसमें अपोजिट चार्जेस हों। तो ये इसकी हिंट है कि नोट दिस पॉइंट ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल चार्ज। ये पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लेकिन इन विच केस, फॉर द अपोजिट चार्ज केस, यहाँ पे दोनों चार्ज क्या थे, प्लस और माइनस चार्जेस थे हमारे पास। तो इनका पॉइंट कहाँ पर आएगा, अपोजिट टू दी, ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स दी मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल चार्ज। तो यहाँ देख रहे हैं 2 जो हमारे पास Q1 चार्ज जो था 2 एक्सपोनेंट -6, इसकी अमाउंट स्मॉल थी, तो वो पॉइंट हमें इसी की साइड पे मिला है। और इसकी साइड कौन सी कहला रही है, लेफ़्ट साइड, या साइड 1 जिसको हम कह रहे हैं। ओके बेटा, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था, थोड़ा सा डिटेल है। आई होप आपको यू गॉट इट। Okay, now I am coming towards this data. First of all, its data. When distance between the charges is 50 centimeter, so Q1 is plus 2 exponent minus 7 coulomb, Q2 is minus 5 exponent minus 7 coulomb, R12 is 50 centimeter, and we have to find the distance x at point P. हमें वो point P का distance मालूम करना है Q1 से या Q2 से भी, जहाँ पर E1 E2 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, दोनों एक साथ कैंसिल कर रही हैं, दोनों एक साथ ज़ीरो हो रही हैं। E1 प्लस E2 इज इक्वल टू ज़ीरो और टोटल इंटेंसिटी इज़ ज़ीरो। ओके, सो R1P Q1 से P तक का फासला जो है वो क्या कहलाएगा, x कहलाएगा, और Q2 से P तक का फासला जो है वो क्या कहलाएगा, 50 सेंटीमीटर प्लस x। डायग्राम को दोबारा देख लीजिए आप, तो Q2 से लेकर पॉइंट P तक का फासला जो है वो क्या कहलाएगा, 50 सेंटीमीटर प्लस
x कहलाएगा। 50 को मैं मीटर में रखूँगा तो 0.5 मीटर प्लस x करके इसको मैं सवाल में रखूँगा। ओके, दिस इज द डेटा ऑफ दिस न्यूमेरिकल। Okay, now in the solution for x from the diagram at point P where electric intensity E1 should be equal to E2 or the resultant intensity is 0, so E1 is equal to E2, ये हमने सवाल की कंडीशन रख दी। अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला प्लेस करेंगे, वी यूज़ हेयर फॉर्मूला इन टर्म ऑफ सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ सोर्स चार्ज, बिकॉज टेस्ट चार्ज तो हमारे पास उसकी अमाउंट ही नहीं गिवन, जो हम पॉइंट पे जिसको हम टेस्ट चार्ज मान रहे हैं वो तो हमें गिवन ही नहीं है। Okay, so the intensity in term of source charge is kq1 upon r1p का स्क्वायर, kq2 upon r2p का स्क्वायर, बिकॉज हम पॉइंट p के लिहाज से दोनों को बैलेंस कर रहे हैं तो हम r1p और r2p डिस्टेंसेस रखेंगे। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा तो q1 upon r1p is equal to x and r2p is equal to 5.5 मीटर प्लस x होल स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज़ रखने पे हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर इनकी चार्जेस की वैल्यू रखने पर 2x⁻7 एंड 5x⁻7, एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। वी विल गेट आवर वैल्यू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 5 अपॉन 0.5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेने पर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगी। अंडर रूट 2.5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 5 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर एक्स बाहर आ जाएगा। ओके, नाउ आई शिफ्ट बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू वी विल गेट 0.5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ओके, नाउ शिफ्ट द अंडर रूट 2 x on the right hand side, we will get 0.5 under root 2 under root 5x minus under root 2x. Okay, now I write this under root 5 in its value form, 2.24x 1.414x. After subtracting this value we will get on the right hand side 0.826x and on the left hand side 0.7071. Okay, now equate this equation for x, we will get our answer x is equal to 0.86 मीटर और 86 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q1। ये जो x आया है ये डिस्टेंस हमने Q1 से मेजर किया है डायग्राम में। ओके, सो दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम Q1, सो द वैल्यू ऑफ x इज 86 सेंटीमीटर और 0.86 मीटर। ओके क्लास, दिस इज वेरी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, सो I solved it. I have tried to explain it much more detail. I hope you will get it. So this is the end of this lecture number 2. In lecture number 3 we will deal with the more numericals of the chapter number 12 of electric intensity. Okay, so this is the end of this class. Thank you. Allah Hafiz.